Hi guys, welcome to my series. This is the series in which we are going to read all the chapters of a bio line by line and understand every line, and plus also get the marked lines for important topics or points mentioned in the NCERT. So let's begin this chapter today. Sexual reproduction in flowering plant. This is the first chapter of our class 12th that we are going to cover in the series. And since first chapter is deleted, so we are beginning from the chapter number 2. So let's start. Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. इसमें हमें ये कह रहे हैं कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होता है वो फ्लावर्स के थ्रू होता है. फ्लावर्स में ही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो फ्लावर्स जिनको हम देखकर अट्रैक्ट होते हैं ये सारे एक मेथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस. ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स हमारे सेल्फ यूज़ के लिए नहीं है बल्कि फ्लावर्स आर ऑल्सो देयर फॉर रिप्रोडक्शन मेथड इन द केस ऑफ प्लांट्स. जैसे कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऑल द एंजियोस्पर्म्स. हियर ऑल फ्लावरिंग प्लांट रेफर्स टू द एंजियोस्पर्म्स. इन सब में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है? फ्लावर्स के थ्रू होता है, राइट. एंड ये सारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. A look at the diversity of structures of the inflorescence flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and seeds. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज द फ्रूट, सेकेंड इज द सीड. In this chapter, let us try to understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants, that is our angiosperms. So इस पैराग्राफ में सिर्फ हमको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड प्लस सारे फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फ्रूट्स एंड सीड्स. क्लियर. फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. Human beings have had an intimate relationship with the flower since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, uh, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? So in this paragraph we got to know कि flowers का humans के साथ बहुत ज़्यादा deep relation है. That is we use flowers for multiple purposes and conveying our multiple type of feelings. इसके लिए हम flowers का यूज़ करते हैं. प्लस हम flower की cultivation भी करते हैं जिसको क्या कहते हैं? Floriculture. So floriculture is flower cultivation. Here in this photo we are given that flower consists of 4 parts, and that is the female reproductive part which is called as gynoecium, and उसमें हमारा क्या आता है? Style, stigma plus this ovary part, right? This is ovary. The basal bulge part is ovary, the elongated part is style, and the receptive part for pollen grains is the stigma. And the male reproductive part includes anther plus this long slender filament जिसको मिला करके हम स्टेमन कहते हैं. सो दीज आर कलरफुल पार्ट्स आर कॉल्ड एज पेटल्स, और ये जो होते हैं ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैंगिंग फ्रॉम दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज सेपल. आई होप दिस photo is clear to all. To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11th, you have read of various parts of the flowers. It will help you to recall the parts of typical flower. Can you name the 2 parts in a flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop? Right? तो इसमें हमें यही कहा गया है कि बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल तो है ही, प्लस एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं, प्लस दे आर द साइट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ लेट्स सी. रिप्रोडक्शन के 3 phases होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, fertilization and post fertilization events. So let's look at the first one, that is pre-fertilization events. Much before the actual flower is seen and on a plant, the decision that the plant is going to flower has been taken.
Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You would recollect that the androecium consists of a wall of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. इन दिस पोर्शन हमें क्या समझाया गया है कि अगर एक प्लांट फ्लावर करना चाहता है, वो डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है कि उसको फ्लावर करना है या नहीं करना है, एंड इसमें सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में, और इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड जिनके पास क्या होती हैं फ्लोरल बड्स, वो कंसिस्ट करते हैं, एंड देन द फ्लावर, फ्लोरल बड के बाद क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है. इन अ फ्लावर टू पार्ट्स आर देयर, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंड्रोशियम कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को गायनोशियम कहेंगे. राइट, गायनोशियम में यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, पिस्टल एंड स्टिग्मा. एंड्रोशियम में यूनिट होती है हमारे स्टेमेंस की, एंड गायनोशियम में कार्पल्स मिल करके हमारे पिस्टल को कंस्टिट्यूट करते हैं. Stamen, microsporangium and pollen grains. This figure shows the two parts of the typical stamen. Stamen क्या होते हैं, units of androecium, right? Stamen एक long and slender stalk होता है उसके पास, जिसको हम क्या कहते हैं, filament, and the terminal generally bilobed structure is called as anther, जिसका proximal end कहाँ पे attached होता है, to the thalamus or the petal of the flower. The number and length of stamens are variable in flowers of different species. हमें इन लाइंस में क्या बोला गया है कि दिस इज़ अ यूनिट दैट इज़ द स्टेमेन ऑफ एंड्रोशियम, जिसमें दिस लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट इज दिस लॉन्ग स्लेंडर पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, जिसको हम स्टॉक ऑफ द स्टेमेन कह सकते हैं, एंड द टर्मिनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर. एंड फर्दर वी विल बी लुकिंग व्हाट दिस डायग्राम इंडिकेट. If you were to collect a stamen, each from 10 flowers, each of them from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range of shape and the attachment of anthers in different flowers. इसमें हमको क्या बोला गया है कि लेंथ जो है स्टेमेन की वो हाईली वेरिएबल होती है, एंड उसका नंबर भी वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल कुछ में 1 होगा, कुछ में 9 होगा, लाइक दैट, एंड इनकी लेंथ भी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है. क्लियर. प्लस द शेप ऑफ एंथर्स भी वेरी करता है. एंथर कैसे अटैच हो रहे हैं इन द डिफरेंट फ्लावर, दैट इज विद द फिलामेंट, दैट ऑल्सो वेरीज. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज bilobed with each lobe having 2 theca, that is they are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the 2 theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of an anther. The anther is a four-sided tetragonal structure which consists of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. With the help of these lines, the NCERT is trying to tell us that anther has got 2 lobes. This is the first lobe, and this is the first theca. This is the second theca, right? First and second theca present in a lobe, and इसमें ये first theca है, second theca है present in a lobe. In a lobe, 2 theca are present. For that reason, we refer to this anther as bilobed. That is, it has got 2 lobes. और हर एक लोब में 2 थीका होता है, मतलब इन ऑल एक एंथर में 4 थीकाज आर प्रेजेंट, राइट. और एक लॉन्गिट्यूडनल सी लाइन पास करती है इसके थ्रू, जो इसको सेपरेट करती है इनटू द टू थीका. ये जो 2 थीका हैं ये सेपरेटेड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव विच पासेज लेंथ वाइज सेपरेटिंग द 2 थीका. एंड नाउ इफ वी लुक एट द एंथर, इट इज़ 4 साइडेड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. It is tetragonal. Tetra word is used for referring 4. It consists of 4 microsporangia, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, present at the corners of each lobe, right? This is the first theca, second theca, third theca and fourth theca, और इन सब में एक एक microsporangia present होता है. Here what we are looking at is ये sac है. sac मतलब कोई चीज़ जो consist करती है किसी दूसरी चीज़ को.
इसमें पॉलन ग्रेन्स फील्ड हैं इस सैक में। लाइन ऑफ डेहिसेंस मतलब क्या होता है, यहाँ से एंथर्स का डेहिसेंस होगा और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एंड ये फाइनली रीच करेंगे टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टिग्मा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। ये जो 4 रेड स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं ये फर्दर डेवलप होकर के इनको हम रेफर करने लग जाते हैं एज अ पॉलन ग्रेन। क्लियर? ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के पॉलन सैक के नाम से जाने जाते हैं। They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with the pollen grains. This entire pollen sac is packed with the pollen grains as we can see in the figure. Structure of microsporangium, that is the structure of our anther we have to look into. हर एक single microsporangium का structure हम देखेंगे. In a transverse section, that is अगर आप ऐसे कट मार रहे हो not longitudinally, in a transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline. मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर हमें आउटलाइन दिख रही है, हमने ट्रांसवर्सली इसको डायसेक्ट किया है। अ टिपिकल स्टेमन 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, जिसमें हमने ट्रांसवर्स कट लगाया है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स सर्कुलर इन द आउटलाइन। 4 wall layers are present which are circular in the outline as we can see from the figure. It is generally surrounded by 4 wall layers which are as epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. The outer three layers, that is epidermis, endothecium और middle layers जो होती हैं, they perform the function of protection and help in the dehiscence of anther to release the pollen. Innermost wall layer tapetum जो होती है, it nourishes and the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus, that is इनके पास multinucleate condition होती है. Can you think of how tapetal cells would become binucleate? Binucleate कैसे होता है? अगर 2 न्यूक्लिया डिवाइड कर गए हैं एंड इवन आफ्टर दैट नो साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड, दैट इज़ कोई सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन की। 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाता है, 2 से 4 एंड 4 से फर्दर 8 and 16 बनता रहता है। When the anther is young, a group of compactly packed homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. हमें यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब एंथर यंग होता है तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एंड ये होमोजीनियस टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच ऑफ द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम में ये प्रेजेंट हुए रहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें हमें पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन पढ़नी होती है। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज meiotic division to form the microspore tetrads. What would be the pleiady of the cells of the tetrad? थ्रू दिस लाइन ये हमें ये कन्वे करना चाहते हैं कि अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है अगर वो डेवलप करता है तो कैसे, हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई गैमीट बनाना है, दैट इज़ पॉलन ग्रेन एक गैमीट है, मेल गैमीट, उसको अगर हमें बनाना होता है तो हमें मियोसिस करवानी होती है। क्लियर? तो हम मियोसिस करवाते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू में एंड फाइनली आफ्टर मियोसिस कौन सी प्लॉइडी बनती है? डेफिनेटली हैप्लॉइड सेल इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मतलब कि 4 सेल्स जो बनते हैं एक स्पोरोजीनियस टिश्यू से, वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell, PMC, through meiosis is called as microsporogenesis. इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि हर एक सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का जो होता है, टिश्यू इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे और हर एक इंडिविजुअल सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर सकता है, दैट इज़ एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन सकते हैं एंड हर एक सेल जो होता है वो एक पोटेंशियल पॉलन मदर सेल बन सकता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहा है। पॉलन मदर सेल क्यों? क्योंकि उससे पॉलन की फॉर्मेशन होने वाली है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों? क्योंकि हमें माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं आफ्टर मियोसिस। क्लियर? और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी सिंपल, और डेफिनेटली इसमें मियोसिस होगा, देयर इज नो स्कोप फॉर माइटोसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज आई हैव टोल्ड, माइक्रोस्पोर्स 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, तो इसके लिए हम इनको टेट्राड कह के रेफर करते हैं। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है, ये हमने यंग एंथर की कंडीशन अभी तक पढ़ी थी कि उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, बट अब मैच्योरेशन का टाइम आया, आफ्टर दैट अब डिहाइड्रेशन का टाइम होगा और डेसिकेशन होगी,
जिसमें 3 आउटर लेयर्स ऑफ एंथर हेल्प करने वाली हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। उनकी हेल्प से ये एंथर के अंदर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना हुआ होता है वो एक दूसरे से ग्लूड होते हैं पहले। नाउ दे आर डिसोसिएटेड एंड डेवलप इनटू इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन्स। मतलब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 सेल्स थे, 4 माइक्रोस्पोर्स थे, मतलब कि 4 पॉलन ग्रेन्स वहाँ से हमको मिलेंगे। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. As I have told कि microsporangium जो होता है उसमें बहुत सारे sporogenous tissue होते हैं, टिश्यू में बहुत सारे cells होते हैं. So there are thousands and thousands of microspores और pollen grains जिनको हम कह सकते हैं वो रिलीज होते हैं जैसे जैसे एंथर डिहाइसेंस करता है. इस फिगर में हमें क्या शो किया जा रहा है कि दिस इज़ कनेक्टिव, जिसकी हेल्प से एंथर कनेक्टेड होता है विद द फिलामेंट. दिस आर द मिडल लेयर्स जो हमें दिख सकती हैं यहाँ पे. एंड ये जो कर्व कर करके पार्ट शो करने की कोशिश की उन्होंने, दैट इज टेपेटम. स्पोरोजिनियस टिश्यू, दिस एंटायर रीजन, रेडिश रीजन इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनियस टिश्यू, जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं. एंडोथीशियम सेकेंड लेयर है, एंड एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एनीथिंग, राइट. एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ, एपिडर्मिस ऑफ अ स्टेम, एक्सेट्रा. वी हैव रेड एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर. तो उसमें कोई बात नहीं है. टी स्टैंड्स फॉर टेप्टम स्टैंड्स फॉर इनरमोस्ट. प्लस वन मोर थिंग दैट यू शुड बी नोट ओवर हियर इन दिस डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, इज टेप्टम का हमने पढ़ा है कि डेंस साइटोप्लाज्मा होता है. So if you look very carefully, you can see the dense cytoplasm of tapetum, and this way you can identify from the figure कि it is tapetum. They are trying to indicate your tapetum here. And ये सारे हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, that is the sporogenous tissue के पार्ट. मिडल लेयर्स, उसके बाद एंडोथीशियम, एंड आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस. क्लियर. लेट्स सी द सेकेंड डायग्राम. इसमें क्या बोला गया है, ये सेम वे, ये एंथर का रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें हमें ये पॉलन सैक्स दिख रहे हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स पैक्ड हैं. क्लियर. फर्स्ट डायग्राम वॉज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, एंड सेकेंड डायग्राम इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स, दिस वन. एंड दिस इज़ अ मैच्योर डिहाइज्ड एंथर. यहाँ पे डेसेंस हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स के थ्रू यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का रिलीज हो रहा है. Pollen grains. The pollen grain represent the the male gametophyte. Pollen grains male gametophyte होते हैं. Female gametophyte is separate, that is embryo sac. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under on a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture of sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. हमें ये बताया जा रहा है कि हम pollen grains कहाँ पर पा सकते हैं. हिबिस्कस का फ्लावर इफ़ वी टच, कि pollen grains के डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं, वेरिएबल साइजेस एंड शेप्स होते हैं जो आप देख करके अमेज हो सकते हो. एंड pollen grains येस हमें कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इन हिबिस्कस फ्लावर. There, if you touch the stigma, there will be the lot of deposition of yellow colored pollen grains. You should remember the color of yellow of pollen grains. It is yellow. Clear. These are the different shapes of few pollen grains that they are showing. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं हमारे. एंड 25 से 50, ऐसे आप याद रखोगे तो याद रहेगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है. डायमीटर रिमेंबर, नॉट रेडियस. इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल. इसके पास 2 लेयर्स होती हैं. हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन. एक्साइन इनकी आउटरमोस्ट लेयर होती है, जिसका केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का होता है. पोलेनिन मीन्स यहाँ से आप याद रख सकते हो कि पॉलन ग्रेन्स की ये लेयर है, एंड आउटरमोस्ट लेयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली. इसकी कैपेसिटी है कि ये कितना भी टेम्परेचर हाई हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हो, मीडियम हो, इट डजंट मैटर टू इट. बिकॉज वाई, बिकॉज हमारे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ होने के बाद प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. सो देयरफॉर वी हैव गॉट दिस स्पोरोपोलेनिन वाली लेयर.
नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज नोन सो फार। कोई एंजाइम इसे डिग्रेड भी नहीं कर सकती। Pollen grain enzyme has prominent aperture called the germ pore where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The enzyme exhibit a fascinating array of pattern and designs. What do you think? Why do you think the enzyme should be hard? What is the function of germ pore? इसमें हमें ये बताया गया है कि स्पोरोपोलिन आउटर मोस्ट लेयर है, राइट। पोलन ग्रेन को जर्मिनेट भी करना है जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हो जाएगी तो इसे जर्मिनेट भी करना है, क्लियर। तो जर्मिनेशन के लिए एक पोर तो होना चाहिए जिससे ये कम आउट करेगा हमारा पोलन ट्यूब, राइट। तो फॉर दैट पर्पज स्पोरोपोलिन इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर इन अ एरिया विच इज रेफर्ड टू एज जर्म पोर। दिस विल बी द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। एंड पोलन ग्रेन में प्रिजर्वेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आप कितने भी टाइम तक इसको फॉसिलाइज करके रख सकते हो। एंड अगर क्वेश्चन आया कि डिफरेंट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन होता है एक्साइन का या इंटाइन का, आउटर लेयर का या इनर लेयर का, तो आप आंसर किसको करोगे? आउटर लेयर का। एक्साइन का होता है नॉट ऑफ इंटाइन, रिमेंबर, ओके। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन एज द नेम सजेस्ट कि इंटरनल होगा ये, क्लियर। It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. Inner layer हमारी continuous होगी, first thing is that, जो आपको याद रखना है। outer layer discontinuous थी कहाँ पे? germ pore पे, clear। outer hard थी और thick भी हो सकती है, but inner layer जो होगी वो thin होगी, cellulose and pectin का बना हुआ होगा। कॉम्पोजिशन भी यू शुड रिमेंबर, आउटर लेयर स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, इनर लेयर सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, डेफिनेटली एक साइटोप्लाज्म है तो आउटर उसके पास मेम्ब्रेन भी होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे स्पर्म के पास होती है, एंड एवरी अदर सेल। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट हैज़ टू टाइप ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल होता है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट मे कम ऐसे लिख करके कि इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस किसका होता है, वेजिटेटिव या जेनरेटिव का। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो आपको क्रैम करनी पड़ेगी ये सारी लाइंस कि वेजिटेटिव सेल जो होता है ये लार्ज होता है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटीरियल होता है, एंड इसमें इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। सिंस वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा है तो जनरेटिव सेल एक बहुत छोटा सा सेल होता है, तो वो उसमें फ्लोट कर सकता है उसके साइटोप्लाज्म में। इसका शेप इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल शेप्ड होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। डेफिनेटली सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, क्लियर। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड इन दिस स्टेज, दैट इज टू सेल्ड स्टेज। मतलब एक वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होगा, उसमें ये शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स हो जाएगी और ये जाकर डिपॉजिट होना पड़ेगा इनको ऑन द स्टिग्मा। इन द रिमेनिंग स्पीसीज दैट इज़ 40% में क्या होता है, जेनरेटिव सेल जो होगा वो डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली। यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे माइटोसिस होगी, मियोसिस हो चुकी है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होनी थी जितनी उतनी, क्लियर। यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू 2 मेल गैमेट्स बनेंगे जेनरेटिव सेल से एंड 3 सेल स्टेज हो जाएगी। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में कब डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है? 3 सेल स्टेज पे होता है, दैट इज़ एक वेजिटेटिव सेल होगा, 2 जर्म सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। Pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. मतलब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमें एलर्जीज़ भी कॉज कर सकते हैं। लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ सीजन्स में लोगों को एलर्जी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द फ्लावर। एंड एलर्जीज प्लस ये ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस भी कॉज करते हैं, आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकता है, एज्मा, ब्रोंकाइटिस जैसे। पार्थेनियम एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ और कैरेट ग्रास। It has came into India as a contaminant with imported wheat and has become ubiquitous in the occurrence and causes pollen allergy. Pollen allergy का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये नेटिव टू इंडिया नहीं है, दिस इज़ एक्जोटिक वेराइटी।
जो इंडिया में इम्पोर्ट हो गई थी वीट के साथ बाई मिस्टेक, एंड इट हैज़ बिकम यूबिक्विटस, मतलब एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट एंड इट कॉजेज पॉलन एलर्जी. In this diagram, we are shown the stages of microspore maturing into a pollen grain. ये एक माइक्रोस्पोर टेट्राड है जिसमें से एक माइक्रोस्पोर को हमें शो किया गया है. ये मेच्योर कैसे होता है, इसमें एक ये दिस लार्ज सेल्स जो हैं ये वैक्यूल्स दिख रहे हैं जो लार्ज स्पेसेस हैं. दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड नाउ एसिमेट्रिक स्पिंडल हमको दिख रहा है इसमें. आपको यहाँ पे याद रखना है कि सिमेट्रिक स्पिंडल नहीं होता है, एसिमेट्रिक होता है. एंड इसमें दो टाइप के सेल्स फिर फाइनली फॉर्म होते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव सेल. एक लार्जर सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होगा. स्मॉलर सेल विल बी जेनरेटिव सेल जो फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में. pollen grains are rich in nutrients. सिंस pollen grains हैं सोर्स ऑफ दोनों चीज़ें हैं. पहला ये एलर्जी भी कॉज करते हैं प्लस ये न्यूट्रिएंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं. इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ pollen टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट. अब इसको हम फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी अपनी डाइट में ले सकते हैं. इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ pollen प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो लोगों को यूज़ दिया जाता है, दैट इज़ वन ऑफ एथलीट्स एंड सेकेंड रेस हॉर्सेस को दिया जाता है. ये एक न्यूट्रिशियस सोर्स माना जाता है. एंड टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी है दिस स्पॉट्स आर फ्रॉम इंग्लैंड. क्लियर. ये पॉलन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए इफ़ इट कम्स इन आवर एग्जाम. दिस इज़ बी पॉलन एज इंडिकेटेड. पॉलन प्रोडक्ट्स हैं राइट. क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स हैं. पहला बी पॉलन क्रीम है, द एनर्जी शेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इट इज़ गिवन. क्लियर. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. If they have to bring about fertilization, how long do you think the pollen grains retain viability? वाइबिलिटी क्या होता है. अब जैसे कि हर एक चीज़ का पीरियड होता है, दैट इज़ सीड को भी जर्मिनेशन का पीरियड होता है. अगर वो डोमेंसी के स्टेज में है, उसको वो पर्टिकुलर टाइम चला गया, मतलब उसके सारे जो भी रिजर्व फूड थे वो फिनिश हो गए तो वो डाई कर जाता है. क्लियर. सेम वे में हमारे पास पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको भी एक फिक्स्ड टाइम में ही रीच करना पड़ता है टू द स्टिग्मा एंड अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करना पड़ता है. अगर वो नहीं हुआ तो वो नॉन वाइबल हो जाएंगे, मतलब दे कांट फर्दर ग्रो, दे कांट फर्दर ब्रिंग अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देयरफॉर वाइबल पीरियड में ही उनको अप्रोच करना पड़ता है टू द स्टिग्मा. द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. देखो जो पीरियड है कि pollen grains वेरिएबिलिटी का वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट स्पीसीज़ एंड ये हाईली वेरिएबल होता है. प्लस ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर कितना है, लाइक ह्यूमिडिटी कितनी है. इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट pollen grains lose viability within 30 minutes of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae, they maintain viability for months. ये डाटा हमको याद रखना है दोनों बहुत अच्छे से, बिकॉज ये PYQs पे पूछ चुके हैं कि pollen grain की वाइबिलिटी सीरियल्स में कितनी होती है. राइस एंड वीट ही नहीं देकर अगर वो पूछा, अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ दिया कि सीरियल्स में कितनी वाइबिलिटी होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए 30 मिनट्स होती है. राइस और वीट में पूछा तो वेल एंड गुड नाम से रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेगुमिनेसी में 3 फैमिलीज़ में वाइबल फॉर मंथ्स होता है, दैट इज़ 1 month 2 month. इट कैन बी वाइबल टू दैट पीरियड राइट. यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी हम स्टोर करते हैं स्पर्म सीमेन या स्पर्म को. इट इज़ possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. इसमें हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि pollen grains फॉसिलाइज्ड हो सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन राइट. वो हार्ड कवरिंग की तरह एक्ट करता है, जैसे कि सीड्स को हम स्टोर कर सकते हैं सीड बैंक में बिकॉज ऑफ आउटर कोटिंग सीड कोट.
सेम वे में हम पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, बट कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना है प्लस माइनस 196 डिग्री सेल्सियस भी प्रोवाइड करना है। अगर इस डाटा को उन्होंने फ़ारेनहाइट या केल्विन में कर दिया तो यू शुड कन्वर्ट इट एंड लुक आफ्टर इट, राइट। आपको यूनिट भी ध्यान रखना है कि -196 डिग्री सेल्सियस है, 196 नहीं, -196। इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसे हम सीड बैंक में सीड्स को स्टोर करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, सेम वे में। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ovule and embryo sac. Gynoecium represents the female reproductive part of the flower as we know. The gynoecium may consist of single pistil, monocarpellary होगा, or many or have more than one pistil, that is multicarpellary condition आ सकती है। Clear? When there are more than one of the pistil may be fused together, syncarpus, यहाँ पे सिंगेमी टर्म रिमेंबर फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ थिंग्स होता है। तो सेम वे में अगर पिस्टल्स फ्यूज कर रही हैं तो उसको हम सिंकारपस कहेंगे, अगर ये फ्री होती हैं तो उनको एपोकार्पस कहते हैं। क्लियर? ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, इसमें लैंड करता है पॉलन ग्रेन। द स्टाइल इज द लॉन्ग elongated and slender part beneath the stigma. The basal burst part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian locule, that is cavity, and the placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation that you have studied in morphology chapter. क्लियर? इसमें हमें सिर्फ यही बताया गया है कि गानोशियम जो होता है वो कंसिस्ट करता है पिस्टिल का। पिस्टिल 1 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, फ्यूज्ड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है। एक पिस्टिल के 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में एक कैविटी होगी जिसको हम लॉक्यूल कहेंगे, एंड प्लेसेंटा जो होते हैं वो उसी लॉक्यूल में प्रेजेंट होता है। दिस यू शुड रिमेंबर कि प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द ओवरियन कैविटी, दैट इज उसी लॉक्यूल में प्रेजेंट होगा। सी, ये टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी अटैच्ड टू द फ्लावर, दैट इज थैलेमस। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ अराइज करते हैं? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द ओवरियन कैविटी। क्लियर? ओव्यूल को हम और क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा था किसको? एंथर के अंदर जो 4 कॉर्नर्स थे उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा था। क्लियर? सेम वे में ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, दैट इज वीट होगा, पैडी होगा, मैंगो होगा, तो ओव्यूल्स का नंबर 1 हो सकता है। टू मैनी, जैसे कि हमारे पपाया हो गए, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स हो गए। इसको कैसे याद रखेंगे हम कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो फाइनली आप आगे पढ़ोगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बनाते हैं, तो जिसमें हम मल्टीपल सीड्स देखते हैं उसमें मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि पपाया बहुत सारी ब्लैक सीड्स होती हैं, वाटरमेलन में सीड्स ही सीड्स होती हैं, ऑर्किड्स में थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सिंगल सीडेड फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि हमारा मैंगो सिंगल सीड, पैडी सिंगल सीड, वीट 1 सीड। तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 सीड इज इक्वल टू 1 ओव्यूल, और उसके एग्जांपल्स हम 1 ओव्यूल में डाल सकते हैं। एंड मैनी सीड्स इज इक्वल टू मैनी ओव्यूल, और उसको मैनी ओव्यूल के एग्जांपल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। The megasporangium, that is ovule. Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure located attached to the placenta by means of a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. Thus, the hilum represents the junction between the ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called the integument. Integument encircles the nucellus except at the tip, where a small opening called micropyle is organized. Opposite to the micropyle end is the chalaza, representing the basal part of the ovule. Let's try to understand all the details that is given in the lines of NCERT through this diagram. कि ovule जो होता है it is present first thing in the ovarian cavity. इसमें होता क्या है कि ये प्लेसेंटा से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। प्लेसेंटा से ही तो अराइज करता है ना, ये ओव्यूल है, दिस इज एन ओव्यूल। क्लियर? एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये प्लेसेंटा से अराइज कर रहा है एंड ये ओव्यूल अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल और ओव्यूल को हमारे को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या है? हाइलम। अगर आपको फ्यूनिकल और हाइलम में डिफरेंस होता है, मतलब कन्फ्यूजन होती है याद करने में, तो आप ऐसे याद रख लो। हॉफ से मतलब क्या होगा कि हाइलम जो है वो जंक्शन ऑफ
ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये फ्यूनिकल हो गया, ये हाइलम हो गया अपना। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, जैसे कि हमने पोलन ग्रेन में पढ़ा है कि एक जर्म पोर होता है आउटर लेयर में ताकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो पाए, तो ओव्यूल के अंदर भी तो कोई स्पेस होना चाहिए जिसके थ्रू एंट्री हो पाए। सो दैट एंट्री पॉइंट फॉर द पोलन ट्यूब इज माइक्रोपाइल एंड इसके जस्ट अपोजिट पोल में चैलेजल पोल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल सराउंडेड होता है 1 और 2 लेयर्स से, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटेगमेंट्स कहते हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन पर्पज। ठीक है, आउटर इंटेगमेंट को आउटर कहेंगे प्लस इनर इंटेगमेंट ये रहा। उसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूसेलस क्या होता है, एम्ब्रियोसाइक क्या होता है, दैट वी विल सी। जिसमें हमारा ओव्यूल इस शेप में प्रेजेंट होता है, पूरा इन्वर्टेड शेप में, उसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। डिटेल्स आर नॉट इन आर सिलेबस कि ओव्यूल के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट दैट इज़ नॉट इन आर सिलेबस। इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, पपावर। पपावर मतलब हमारा पॉपी प्लांट जो हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन में। इसमें स्टिग्मा को कैसे शो किया गया है, ऐसे क्लोज्ड सा, दैट इज़ फ्यूज्ड। इट मीन्स ये एपोकार्पस का एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंकार्पस, क्योंकि स्टिग्मा इसमें पूरा फ्यूज्ड सा है, राइट। ये माइकीलिया को शो किया गया है, जिसमें हम देख करके बता सकते हैं कि पूरे जो पिस्टल्स हैं वो फ्री हैं, कार्पल्स फ्री हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। माइकीलिया इज एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस। सिंकार्पस पेपावर होता है हमारे पास। Enclosed within the integuments is the mass of the cell called nucellus, as we have seen in the diagram. Integuments, outer inner integuments के बाद अंदर में क्या होता है, nucellus होता है. This is just a mass of cells. Random group of cells को हम क्या कहेंगे, nucellus कहेंगे. Cells of the nucellus have abundant reserve food material, जिसमें food बहुत ज़्यादा stored होता है. Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. Just like we have read कि male gametophyte क्या होता है, pollen grain होता है, clear, या माइक्रोस्पोर होता है। तो सेम वे में ये एम्ब्रियो सैक हमारी प्रेजेंट है किसमें, मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल में। सेम वे जैसे कि पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट था, दैट इज एंथर में, राइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक मेगास्पोर क्या होता है, अब मेगास्पोर मदर सेल होती है, जैसे हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनाए हैं, वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिससे हम मेगास्पोर मदर सेल जस्ट एनी सेल ऑफ न्यूसेलस को हम कहते हैं, वो फॉर्म करता है एक एम्ब्रियो सैक। एंड फाइनली ये हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो सैक, जो न्यूसेलस के किसी एक सेल से बना है, इसलिए हम कहते हैं कि एक मेगास्पोर से पूरा एक एम्ब्रियो सैक बनता है, राइट। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड सेम वे यहाँ पर भी मियोसिस होगा, एज वी हैव सीन कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी मियोसिस हुआ। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे दोनों चीज़ों को, तो यू विल बी इजीली एबल टू रिलेट एंड रिटेन इट इन योर ब्रेन, राइट, फॉर अ लॉन्गर टाइम. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. सेम वे जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ा था कि स्पोर मदर सेल्स होती हैं, तो ये मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं, न्यूसेलस में प्रेजेंट एनी रैंडम सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल, जिसके पास कैपेबिलिटी है टू फाइंड द मेगास्पोर, टू फॉर्म द मेगास्पोर्स, राइट। इसमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, एंड इट विल अंडरगो डेफिनेटली मियोसिस टू फॉर्म आर मेगास्पोर्स, राइट। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, जैसे मियोसिस में 4 प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड प्रोडक्ट्स, और हमने पीछे भी देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 मेगास्पोर टेट्राड्स हमको मिल रहे थे, 4 माइक्रोस्पोर्स मिल रहे थे, सॉरी, एंड वो टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो सेम वे में यहाँ पे अभी हमको 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे क्योंकि मियोसिस हुई है, बट ये ऑल्दो सारे ग्रो नहीं करते, बट हमें 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं हम, एम्ब्रियोसाइक को कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स को, राइट। In majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. पीछे हमने देखा है कि 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, चारों के चारों पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, बट हियर इट इज़ नॉट द सेम। 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, बट आउट ऑफ द 4 सिर्फ एक डेवलप होगा, एक फंक्शनल रहेगा, और वो एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन करता है, एंड रेस्ट 3 डिजेनरेट। ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक। तो एक ही एम्ब्रियोसैक हमें सिंस बनाना है 1 मेगास्पोर से,
तो ऐसे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रही है, नॉट फ्रॉम 4 मेगास्पोर्स, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस? न्यूसेलस डिप्लॉइड सेल होगा, क्योंकि उसमें मियोसिस होनी है आगे चल करके, उसी में हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिससे हमें एम्ब्रियो सैक बनाना है, मेगास्पोर बनाना है, तो मियोसिस होनी है, तो डेफिनेटली वो एक डिप्लॉइड सेल होगा, तभी उसमें मियोसिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल डेफिनेटली डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हमें इससे मेगास्पोर्स बनाने हैं मियोसिस के थ्रू। फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस से बनी है, तो ये हैप्लॉइड होगी। फीमेल गैमेटोफाइट, वही मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है अपना एम्ब्रियो सैक, सो इट विल बी सेम एज दैट हमारा मेगास्पोर है, हैप्लॉइड। डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, जहाँ पे हमारी मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस में से डिफ्रेंशिएट करेगी। दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल, राइट, न्यूसेलस में प्रेजेंट। अब ये फर्दर मियोसिस करती है, मियोसिस 1 हुआ तो ये 2 सेल्स बन जाते हैं मेगास्पोर डायड के। अब मियोसिस 2 हुआ एंड फाइनली हमारी मियोसिस कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड हमको देखने को मिलता है। ये सारा प्रोसेस माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, दिस यू शुड रिमेंबर, नॉट टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। अगर डायग्राम में चैलेजल एंड दे रखा है, इट विल बी रॉन्ग। क्लियर? Let us study the formation of embryo sac in a little more detail, right? The nucleus of a functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the two opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. जैसा हमने अभी पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक बन जाता है फंक्शनल मेगास्पोर से, हमारा जो मेगास्पोर है उससे एम्ब्रियो सैक बनने की हम डेवलपमेंट को इसमें अब पढ़ने वाले हैं। तो एम्ब्रियो सैक में पहले मियोसिस हो चुकी है, जिससे एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो गई है, एंड नाउ मेगास्पोर में माइटोसिस होगी टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, वो भी 3 सिक्वेंशियल माइटोसिस होगी। पहला माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लिएट कंडीशन आएगा, फिर 1 मोर माइटोसिस होगा तो 4, 2 से 4 बन गए। अब अगेन एक माइटोसिस होगी, दैट इज थर्ड माइटोसिस होगी, जिससे हमें 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक देखने को मिलती है। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte or the embryo sac. ये सारे divisions जो हुए 2 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये सारे divisions जो थे वो फ्री न्यूक्लियर थे, दैट इज़ एक न्यूक्लियाई से 2 बनते जा रहे थे, 2 से 4, 4 से 8, उनके ऊपर कोई सेल वॉल ले डाउन नहीं हुई। हमने पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस होती है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होती है, बट ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं। पहले फ्रीली सारे न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे, उसके बाद जब 8 सेल्ड स्टेज आ जाती है तब जा करके वहाँ पर 8 सॉरी सेल्स तो अभी बने ही नहीं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है, तो उसके बाद सेल वॉल ले डाउन होता है एंड फाइनली 8 सेल्ड स्टेज हमें देखने को मिलती है। बट उसमें भी एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि 8 न्यूक्लियाई है तो 8 सेल्स नहीं बनते, एक कम सेल बनता है, राइट। और इस एंटायर प्रोसेस के थ्रू एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस करवा करके हम फाइनली हमारी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को बनवा लेते हैं फ्रॉम मेगास्पोर, राइट। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक मेगास्पोर से हम एक फीमेल गैमेटोफाइट या एक एम्ब्रियो सैक को बनाते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called the polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. See what they are saying कि 2 सेल था, 2 से 4 बना, 4 से 8 बन गया, राइट। अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है कि ऊपर को दैट इज माइक्रोपाइलर एंड ये है जहाँ पे 3 न्यूक्लियाई मूव करती हैं, एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे बनते हैं चैलेजल एंड पे, एंड 2 सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियाई रह जाते हैं। सेल वॉल जब ले करती है तो यहाँ पे 3 ले करेगी, बट ये 3 6 सेल वॉल ले डाउन हो गए। ये एक बड़ा सा सेल रह जाएगा, दैट इज 7 सेल्ड स्टेज रहेगी, सेंट्रल सेल रहेगा ये, जिसमें 2 न्यूक्लियाई विदाउट एनी सेल वॉल ऐसे फ्रीली लाई डाउन करेंगे। एंड इनकी अरेंजमेंट कैसे हो जाती है फिर, ये चैलेजल पोल है जहाँ पे हमें एंटीपोडल्स 3 देखने को मिलेंगे। ये हमारा सिनर्जिड है, एग है, फिलिफॉर्म apparatus है सिनर्जिड्स में, एंड ये पोलर न्यूक्लियाई हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिलो। आपको याद रखना है कि अबव या बिलो नहीं, अबव नहीं, बट इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एग apparatus। दिस इज एग apparatus एंड एक्चुअली इसको उल्टा बनाना चाहिए, इन्हें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होना चाहिए, तो उसके नीचे ये हमें देखने को मिलेगा कि हमारा पोलर न्यूक्लियाई फ्रीली लाई कर रहा है इन द सेल साइटोप्लाज्म। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac.
अब इसको वर्ड्स में देखो एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, 3 cells आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट एग एपेरेटस। एग एपेरेटस किन 3 सेल्स मिलकर बनता है, एक एग सेल होगा बीच में एंड साइड में 2 सिनर्जिड्स अपने को देखने को मिलती है। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thicknings at the micropylar tip, जिसको हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म apparatus। ये पूरा egg apparatus ही micropylar end पे होता है, तो वहाँ पे एक टिप होती है जहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है ऑफ द synergids। एंड इनका रोल क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गाइड करते हैं pollen ट्यूब को इनटू द synergid, दैट इज डायरेक्शन देते हैं। These cells are at the chalical end and are called antipodals। और 3 सेल्स चेलिसल एंड पे होते हैं जिनको हम एंटीपोडल कहेंगे। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड इन पोलर न्यूक्लियाई को मिला करके विद सिनर्जिड्स एंड एग सेल प्लस एंटीपोडल्स ये हमारे पास 8 सेल्ड कंडीशन 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होगी एंड 7 सेल्ड सिचुएशन होगी। यस।